جب ہم چونپڑوں کے حصار سے دور نکل آئے تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ اسی لباس میں ملبوس مزید چند افراد اس سمت بھی آ گئے تھے اور بھاگتے ہوئے ویشیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ویشیوں کی لاشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے۔ حملہ آوروں نے عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا، لیکن اس وقت ان سے کچھ کہنا فضول تھا۔ میں اور برڈ ان کے ساتھ کافی دور نکل آئے۔ جب اتنا فاصلہ طے ہو گیا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہ رہا تو میکنو نے برڈ کو زمین پر لٹا دیا اور جھک کر اس کے پیروں کی مالش کرنے لگا۔ میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا تھا، لیکن نواب سراج الدین اور اس دوسرے شخص کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ ابھی تک میرے اور میکنو کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میکنو نے برڈ سے پوچھا، کیا تمہاری حالت کچھ بہتر ہوئی برڈ؟ وہ بولا، بہت بہت شکریہ میکنو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم اگر کسی اور کام میں مصروف ہونا چاہتے ہو تو اب میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ میکنو اٹھا اور اپنی سٹین گن سنبھال کر واپس اسی طرف چل پڑا جہاں ابھی تک گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ میری نگاہیں اسی سمت لگی رہیں۔ برڈ نے میرے نزدیک کھسکنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ کیا حال ہے چیف؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں برڈ، اور اٹھ کر پھرتی سے نواب سراج الدین کے پاس پہنچا اور جھک کر ان کے پیروں کی مالش کرنے لگا۔ میں ان کے دوران خون کو بھی بحال کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کے بدن پر ہاتھ رکھا تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ بدن بالکل ٹھنڈا تھا۔ میں نے متوحش نگاہوں سے نواب سراج الدین کی صورت دیکھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر موت کا سکوت طاری تھا۔ میں نے ان کے سینے پر کان رکھ کر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، لیکن دل کمبخت دغا دے گیا تھا۔ غالباً اس ہولناک منظر نے کسی وقت نواب سراج الدین کے دل کی دھڑکن بند کر دی تھی اور اب وہ زندہ نہیں رہے تھے۔ ایک بے اختیار آہ میرے منہ سے نکل گئی اور میں انہیں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بیچارے نواب سراج الدین کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ یہی کیفیت اس دوسرے یورپین کی تھی، وہ بھی مر چکا تھا۔ ہم دونوں تو غیر معمولی قوتوں کے مالک تھے کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی زندہ رہے تھے۔ بھلا دیا تھا ہم نے اس بات کو کہ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، ورنہ ہمارا حال بھی ان سے مختلف نہ ہوتا۔ میں برڈ کے پاس واپس آ گیا۔ برڈ کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھٹکی اور پھر آہستہ سے بولا، زندگی اور موت کا یہ کھیل کتنا عجیب ہے اور شاید ناقابل یقین بھی۔ اتفاقات بلا شبہ زندگی میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ایسے اتفاقات کیا ضروری تھے کہ وہ لوگ اس بوڑھے انگریز کا انتخاب کرتے؟ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ان آدم خوروں کا شکار ہو سکتا تھا، لیکن ہم پھر بچ گئے۔ میں نے کہا، میکنو کے ساتھ فاخرہ یعقوبی بھی ہوگی، لیکن دیگر لوگ تمہارے خیال میں کون ہو سکتے ہیں برڈ؟ وہ بولا، صحرائی محافظ، یقیناً وہ لوگ جو لائن آف کروزل کے اطراف میں بھٹکنے والوں پر نظر رکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے عرب محافظ۔ خونریزی اور تباہی کا یہ کھیل تقریباً 40 منٹ تک جاری رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سٹین گن بردار آدم خور قبیلے کے ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑنا چاہتے ہوں۔ بڑی عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ 40 منٹ کے بعد گولیوں کی آوازیں بالکل بند ہو گئیں اور پھر تقریباً 20-30 کے قریب افراد ہماری طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان میں میکنو بھی تھا۔ میں نے فاخرہ یعقوبی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ بھاری جسامت کا ایک چست و چالاک عرب بھی آ رہا تھا۔ اپنے مشن سے فارغ ہو کر یہ لوگ ہماری خبرگیری کے لیے چل پڑے تھے۔ فاخرہ یعقوبی نے مجھے دیکھا تو تیر کی طرح سیدھی میری طرف آئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کے تاثرات سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، علی، تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتی، اور اس کے بعد شاید میری تمام زندگی ہی بے عمل ہو جاتی۔ میں خاموش نگاہوں سے فاخرہ یعقوبی کو دیکھتا رہا۔ وہ طویل قامت عرب بھی میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ کرخت چہرے والا آدمی تھا، عمر 30-35 کے درمیان ہوگی۔ فاخرہ یعقوبی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم صحیح وقت پر پہنچے غازی ناصر، خدا نخواستہ کچھ دیر ہو جاتی تو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ طویل قامت شخص نے کہا، بہت سے لوگ شکار ہو چکے ہیں، میں ان کے لیے افسردہ ہوں۔ فاخرہ یعقوبی میرے سامنے پہلے بھی غازی ناصر کا نام لے چکی تھی اور میں غائبانہ طور پر اس شخص سے واقف تھا۔ پتہ نہیں اس نے غازی ناصر کو میرے بارے میں کچھ بتایا تھا یا نہیں۔ پھر فاخرہ نواب سراج الدین اور دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوئی اور وہاں موجود ایک شخص نے کہا، نہیں، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ فاخرہ نے گردن جھٹکی اور پھر ان لوگوں سے بولی، ان کی تدفین کر دو۔ غازی ناصر نے کہا، جو لوگ ان درندوں کے ہاتھوں موت کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے اس علاقے میں آدم خوروں کا نشان مٹا دیا ہے، کسی ذی روح کو نہیں چھوڑا میں نے۔ چند افراد گڑھا کھودنے لگے تھے۔ پھر جب نواب سراج الدین اور اس انگریز کو ایک ہی گڑھے میں اتارا جانے لگا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں، وہ مسلمان ہے، اسے علیحدہ قبر میں دفن کرو۔ غازی ناصر چونک پڑا۔
फिर उसने दूसरी कब्र तैयार करने का हुक्म दिया और इंग्रेज को पहली खोदी हुई कब्र में दफन कर दिया गया। फाखरा ने पूछा, कोई शनासा था अली? मैंने कहा, हाँ, एक बेजरर और शरीफ एशियाई जो बहुत पहले मिला था मुझे। बहुत से लोग थे इसके साथ, इसकी बेटी भी थी। फाखरा ने अफसोसनाक लहजे में कहा, ओह। फिर बड की तरफ मुतवज्जे हो गई। बोली, बड, मुझे अफसोस है कि तुम जिंदा बच गए। बड ने कहा लगाकर कहा, लेकिन फिक्र न करें मैडम जी, चंद लम्हात थे कि हमारी लाशें भी यहीं पड़ी होंगी। फाखरा ने बुरा मानते हुए कहा, क्या फजूल बकवास है। वो बोला, ये एक ठोस हकीकत है मैडम, हम सिर्फ कुव्वत इरादी के बल पर जिंदा हैं और ये भूल गए हैं कि आखिरी बार खुराक और पानी हमें कहाँ मिला था। फाखरा ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया और फिर चंद लोगों को इशारा करके पास बुलाया और उन्हें हिदायत देने लगी। वो लोग दौड़ते चले गए। नवाब सिराजुद्दीन को भी दफन कर दिया गया था। चंद लम्हात में हमने 6-7 शानदार किस्म की लैंड रोवर्स उस तरफ आते देखी। उन्हें वही लोग ड्राइव करते हुए ला रहे थे जिन्हें फाखरा ने हिदायत दी थी। लैंड रोवर्स हमारे करीब रुक गईं। फाखरा ने कुछ और लोगों को हिदायत की और फिर हमारे लिए नफीस किस्म की कॉफी और ताज़ा सैंडविचेस लाए गए। उस वक्त उनकी लज्जत नाकाबिले बयान थी। गाजी नासिर वेश्यों की जली हुई झोंपड़ियों का जायजा लेने चला गया। फाखरा अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी। कॉफी की गई प्यालियां पीने के बाद सेरी हुई। इतनी देर में गाजी नासिर वापस आ गया था। फाखरा ने पूछा, कोई खास बात नासिर? वो बोला, नहीं मिस याकूबी, कोई बाकी नहीं बचा। उन इफरीतों का खत्म हो जाना ही बेहतर हुआ। यहाँ हमारे लोग घूमते ही रहते हैं। इन लोगों को आदमखोरों के किसी एक कबीले से तो निजात मिली। फाखरा ने पूछा, तो चलें? नासिर ने कहा, अगर आपके दोस्त सफर के काबिल हों तो यकीनन। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, इस वहशत कदे से निकलकर हमें जहनी सुकून होगा। फाखरा ने कहा, तब फिर फौरन चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। सफर के लिए भी उम्दा बंदोबस्त किया गया था। एक लैंड रोवर में सिर्फ ड्राइवर, फाखरा और हम दोनों थे। उसमें आरामदेह सीटें लगी हुई थीं, जिन पर हम नीम दराज हो गए। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं फाखरा? बोली, नाटोनिया, लाइन ऑफ क्रूजल की एक बस्ती है। मैंने पूछा, कितने फासले पर? बोली, कोई 80 मील दूर है, यही सबसे करीबी बस्ती है। मैंने कहा, तुम हम तक कैसे पहुंच गई? बोली, हमारे 2 आदमियों ने तुम्हें उस वक्त देखा था जब तुम मगरमच्छों से बचकर भागे थे, लेकिन वो दरिया के दूसरे किनारे पर थे और फिर हमें इत्तला देने के लिए 6 मील दूर आए। न जाने क्यों मेरे दिल ने कहा, ये तुम लोग हो, और मैं गाजी नासिर को लेकर चल पड़ी। मैंने पूछा, उस वक्त हमें वाकई तुम्हारी जरूरत थी? जंगल में तुम हमसे बिछड़ कर किधर निकल गई थी? उसने कहा, काफी दूर। इन कमबख्तों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो एक दिन और एक रात हमारा ताकुब करते रहे। आतिफ और लुत्फी उनके हाथों हलाक हो गए। मैंने कहा, अफसोस। बोली, हाँ, वो अपनी जिद का शिकार हो गए थे। उन्होंने ताउन करना छोड़ दिया था। मौत ही मंडला रही थी उनके सरों पर। उन्होंने हमारी जिंदगी भी खतरे में डाल दी, लेकिन मैकनो ने उस वक्त बड़ी मदद की। मैंने पूछा, क्या तुम इस इलाके से गुजरी थी जहाँ खुश्क झील है? वो बोली, सोना तारा। तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, लंबी कहानी है, हम उसी तरफ निकल गए थे। वो बोली, मैकनो ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि कहीं तुम उस तरफ न जा निकले हो। उसी ने इसके बारे में बताया था। लैंड रोवर की रफ्तार खासी तेज थी। कुछ दूर जाकर किसी कदर रास्ता खराब हो गया तो रफ्तार सुस्त हो गई। उन लोगों के बारे में मुझे अंदाजा हो गया था कि ये अक्सर सहराओं में भटकते रहते हैं, इसलिए इन रास्तों की शनाख्त इनके लिए मुश्किल नहीं थी। रास्ते में जंगली भैंसों का एक गोल हमला आवर हुआ तो कुछ देर के लिए सफर रुक गया। उन पर फायरिंग की गई। कुछ भैंसे जख्मी होकर भागे तो दूसरे भी उनके पीछे लग गए। फिर रात हो गई और बड़ी उम्दगी से तमाम गाड़ियों को जंजीरों में जकड़ कर खड़ा कर दिया गया। आग भी रोशन कर ली गई। खुराक के लिए शिकार किया हुआ गोश्त मौजूद था जिसे तैयार किया गया। रात गाड़ियों में ही गुजारी गई। फाखरा मेरे साथ थी। हम लोग बातें करते रहे। वो खतरनाक लोग ज़ेरे बहस थे जो हम पर हमलावर हुए थे। फाखरा ने कहा, गाजी नासिर से मालूम हुआ है कि उनकी अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद है। 12 चंद पुरस्कार गुरोहों से सहरा गर्दों की मुठभेड़ हुई है। बस परेशानी ये है कि उनकी शनाख्त नहीं हो पाई। सहरा आजम में अक्सर मुहिम जू पार्टियां आती रहती हैं, कुछ हाथी दांत की तलाश में, कुछ पुरस्कार दफीनों के चक्कर में। सोने की तलाश भी आम तौर से की जाती है, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन लोग किस मकसद से यहाँ आते हैं। मैंने कहा, अब तो सबको यकीन हो गया होगा कि लाइन ऑफ क्रूजल के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वो बोली, हाँ, सब इस पर मुत्तफिक हैं। वैसे पहले भी इसका अंदाजा था कि ये सब कुछ होगा, इसलिए हर मुल्क ने अपने सीक्रेट एजेंटों को भेजा है। इस दौरान हमारे कुछ लोग अगवा भी हुए हैं, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। मैंने पूछा, क्या ये अहम लोग थे? फाखरा ने कहा, यकीनन, निहायत अहम। मैंने पूछा, ये कैसे मालूम हुआ कि उन्हें अगवा किया गया है? बोली, यूनस फारही नामी एक एजेंट ने इस बारे में इत्तला दी थी।
उसके 2 साथियों को अगवा कर लिया गया था और वो इत्तेफाक से बच गया था। मैंने पूछा यूनिस फारही अब कहाँ है? बोली बंगाना में। मैंने कहा बंगाना? उसने कहा लाइन ऑफ क्रूजल की एक आबादी है। मैं खामोश हो गया, मगर फिर दफतन एक ख्याल के तहत मैंने पूछा क्या गाजी नासिर को मेरी असलियत मालूम है? बोली नहीं, सिर्फ नाम। मैंने सवालिया अंदाज में कहा यानी? बोली अली यार खान नहीं। तुम्हारे हिदायत के मुताबिक मैंने किसी को तुम्हारे बारे में तफसील नहीं बताई। मैंने कहा ये मेरे हक में बेहतर है फाखरा। दूसरी सुबह फिर सफर शुरू हो गया और शाम को तकरीबन 5 बज रहे थे जब जंगल में मंगल नजर आया। वीरान जंगलों में ऐसी किसी आबादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इमारतें लकड़ी और पत्थरों की सुर्ख सिलों से बनी हुई थीं, लेकिन काफी उम्दा थीं। उनमें एयर कंडीशनर नजर आ रहे थे। अतराफ में झोंपड़े फैले हुए थे, लेकिन ये भी बहुत उम्दगी से बनाए गए थे। खेतों में ट्रैक्टर नजर आ रहे थे। मैंने पूछा बिजली है यहाँ? वो बोली हाँ, लेकिन महदूद। पेट्रोल और मिट्टी के तेल से बिजली पैदा की जाती है, इसलिए बहुत महंगी पड़ती है। इन आबादियों में रहने वाले बहुत पसमानदा लोग थे। जरूरियात जिंदगी के लिए कुछ वसाइल नहीं रखते थे, लेकिन अब यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी जिंदगी की सहूलतें सरकारी तौर पर मुहैया की जाती हैं। झोंपड़ों की जिंदगी खुद उन्हें पसंद है, वरना शायद उन्हें मकानात भी तामीर करा दिए जाते। मैंने पूछा और ये इमारतें? वो बोली ये सब सरकारी हैं। गाड़ियां एक चेक पोस्ट पर पहुंच गईं। एक शख्स को नीचे उतारा गया। सबकी शनाख्त हुई। इंतजामात बहुत बेहतर थे। गाजी नासिर की मार्फत हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद आगे जाने की इजाजत दी गई। आबादी में उम्दा सड़कें थीं, स्विमिंग पूल और पार्क बने हुए थे। दरख्तों की बहुतात थी, जिनके बारे में मालूम हुआ कि ये कदीम हैं, बस उनकी तरतीब कर ली गई। अपनी रिहाइश गाह तक आते हुए मैंने बहुत कुछ देख लिया था। जिस इमारत में हमें ठहराया गया था ये गेस्ट वॉल कहलाती थी। बिल्कुल किसी शानदार होटल की सी हैसियत थी उसकी। अलबत्ता यहाँ क़यामत आम मुफ्त था। सर्विस के लिए वेटर मौजूद थे जो बड़ी मुस्तैदी से हिदायत की पाबंदी करते थे। फाखरा गाजी नासिर के साथ चली गई। बड मेरे साथ ही था। मैंने उसे पूछा तुम पहले कभी नाटोनिया आए हो बड? वो बोला नहीं चीफ, मैंने लाइन ऑफ क्रूजल की ये दूसरी आबादी देखी है। इससे कबल मैं डोफियाओ देख चुका हूँ, वरना मैं ज्यादातर एक्विन में रहता हूँ। मैंने पूछा और मैकनो? वो बोला मैकनो अहम नुमाइंदा शुमार किया जाता है और शायद उसके लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं। मैं खामोश हो गया। फिर हमारे दरमियान मजीद बातचीत नहीं हुई। रात को फाखरा आ गई। उसने मुस्कुराते हुए हमें देखा और फिर 2 मखसूस तर्ज के बैज हमें देते हुए बोली नाटोनिया में आप लोग मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की हैसियत रखते हैं और आपका ताल्लुक मेरे ग्रुप से है, ग्रुप RR7। ये आपका कोड नंबर भी है। नाटोनिया के किसी भी इलाके में जा सकते हैं, कोई पाबंदी कोई रोक टोक नहीं। बस बाहर निकलते हुए ये निशान अपने लिबास पर लगा लिया करें। मैंने कहा वेरी गुड। यहाँ तुम्हारी मसरूफियात क्या रहेंगी फाखरा? वो बोली कुछ भी नहीं, लेकिन शायद मुझे तैरोटा जाना पड़े और वहां से एक्विन। लेकिन अली अगर ऐसा हुआ भी तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम कुछ वक्त आराम करो, खूब सैरो तफरी करो, उसके बाद हम अपने मिशन की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन दिल में यही बात थी मेरे कि शायद मैं तुम्हारा इंतजार न कर सकूं। थोड़ी देर के बाद फाखरा चली गई। बड ने इंटरकॉम पर रूम सर्विस को फोन करके रात का खाना तलब कर लिया और वेटर चंद ही लम्हे के बाद हमारी पसंदीदा चीजों का ऑर्डर लेने आ गया। खाने से फरागत के बाद बड ने मुस्कुराते हुए कहा आज रात तवील अरसे के बाद सुकून की नींद आएगी चीफ, क्या ख्याल है? मैंने कहा हाँ, मैं भी जल्दी सोना चाहता हूँ। कहने को तो मैंने कह दिया था कि जल्द सो जाऊंगा, लेकिन बिस्तर पर लेटा तो नींद कोसों दूर थी। न जाने क्या क्या ख्यालात जहन में आ रहे थे। तहजीब मैल्कम एक्स, अपना मिशन, गुजरे हुए हौलनाक वाकयात, न जाने क्या क्या। नींद बहुत मुश्किल से आई। सुबह को खूब दिन चढ़े जागा। बर्ड तौलिए से सर रगड़ता गुस्ल खाने से बाहर आ रहा था। जाग गए चीफ? गुस्ल कर लो फिर नाश्ता मंगवाते हैं। हाँ, एक खुशखबरी सुनो। मैंने पूछा क्या? बोला हमें यहाँ लिबास भी मिल सकते हैं। नीचे एक स्टोर मौजूद है और उसमें जरूरत का दूसरा सामान भी होता है। मैंने पूछा कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? वो बोला वेटर से। मैं गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। नाश्ते के बाद हम अपने कमरे से बाहर निकल आए। होटल के बैरूनी हिस्से में बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसमें चंद राहबर भी मौजूद थे। उन्होंने हमारे शानों पर आवेजा निशान देखे और हमें ताजीम दी। मैंने एक राहबर से पूछा अगर हमारे पास करेंसी ना हो और हमें किसी शय की जरूरत हो तो हमें क्या करना होगा? राहबर ने, जो अरब ही था, मुस्कुराते हुए कहा अपनी पसंदीदा चीजों का इंतखाब और उसके बाद उनका इस्तेमाल। यहाँ करेंसी नहीं होती जनाब, ना ही उसकी जरूरत पेश आती है। राहबर की बात बड़ी अजीब और दिलचस्प महसूस हुई थी। यानी जिस शय की जरूरत हो उसे हासिल कर लिया जाए और उसके हुसूल के लिए रकम वगैरह की जरूरत ही नहीं। बर्ड उस राहबर से बहुत सी बातें करता रहा।
मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों के इंतखाब में मसरूफ़ हो गया। दिल में एक झिझक थी कि मुफ्त का माल है, इतना न लिया जाए कि किसी को एतराज़ हो। ताहम अपनी पसंद के चंद जोड़े कपड़े, शेव बनाने का सामान, चॉकलेट के पैकेट और चंद ऐसी ही चीज़ें ट्रॉली में रख कर मैं काउंटर पर पहुंच गया। बड उस राहबर से गुफ्तगू करता रहा था। उसने मुझे देखकर माजरत करते हुए कहा, सॉरी चीफ, मैं कुछ ऐसा बातों में मसरूफ हुआ कि तुम्हारा साथ न दे सका, जबकि मुझे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। काउंटर पर एक मुलाजिम ने तमाम चीज़ें निकाल कर सजा दी और उनका इंदराज रजिस्टर में किया जाने लगा। उसके बाद उन्हें एक चर्मी सूटकेस में पैक कर दिया गया और मुझसे सिर्फ दस्तखत लिए गए। बड अपनी ज़रूरत की अशिया जमा कर रहा था, जो तादाद में मुझसे कुछ ज़्यादा थी, लेकिन किसी की पेशानी पर कोई शिकन न थी। ये सामान लेकर हमें वापस अपने कमरे में आना पड़ा, क्योंकि उसे यहाँ महफूज करना ज़रूरी था। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में बड से कहा, बड, क्या ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? बोला, नहीं चीफ, दरअसल तुम्हें इल्म है कि लाइन ऑफ क्रूजल मुश्तरिका अरब सरमाए से वजूद में आई है और यहाँ गैर मुतल्लिका अफराद का कोई गुजर नहीं। मुतल्लिका अफराद के लिए ये सहूलत मुहैया की गई है। मैंने उस राहबर से बहुत सी ऐसी बातें मालूम की हैं जिनका इल्म पहले मुझे भी नहीं था, क्योंकि एक्वन लाइन ऑफ क्रूजल में शुमार नहीं होता, बल्कि उसे एक सरहदी चौकी की सी हैसियत हासिल है और वहाँ ये तमाम सहूलतें नहीं हैं। मैंने कहा, और क्या खास बात मालूम की तुमने उस राहबर से? वो बोला, चीफ, इस बस्ती का नाम नाटोनिया है। नाटोनिया में आसपास के बहुत से कबाइल को जमा करके उन्हें तरबियत दी गई है और यहाँ वाक़े फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। उनके लिए बेशुमार ऐसे स्टोर खोल दिए गए जहाँ से उन्हें बगैर किसी परेशानी के ज़रूरत की अशिया दस्तयाब हो जाती हैं और वो फ़िक्र माश और फ़िक्र ज़िंदगी से बेनियाज हो गए हैं। अतराफ में बेशुमार कबाइल ऐसे भी हैं जिन्होंने अरबों की महकूमी कबूल नहीं की, लेकिन उनसे कोई तारुज़ भी नहीं किया है। वो अपने तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाटोनिया के शुमाल, मशरिक और जनूब में थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे बहुत से कबाइल मौजूद हैं, लेकिन वो नाटोनिया वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बस वो अपने तौर पर जिंदगी गुजारने के ख्वाहां हैं। यूं समझ लो कि बस वो अरबों से ताउन नहीं करते। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, बड, क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसे कबाइल में हमारे दुश्मन पनाह नहीं ले सकते? वो बोला, इस इम्कान को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता चीफ। जाहिर है उन्हें आज़ादी होगी इसकी और अपने तौर पर वो वहाँ आसानियाँ हासिल कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई? बोला, अफसोस, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, बहरहाल आगे कहो। बोला, आगे कुछ नहीं, बस यही तमाम बातें थीं। हाँ, एक बात और, नाटोनिया के अतराफ में और यही नहीं दूसरी बहुत सी जगहों पर भी ईसाई तबलीगी मिशन अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है और ये बहुत तवील अरसे से अपना ये काम अंजाम देते आ रहे हैं। इन लोगों में भी हमारे दुश्मनों की मौजूदगी मुमकिन है। मैंने कहा, बेशक, बल्कि इस तरह उन्हें काफ़ी आसानियाँ हासिल हो सकती हैं। क्या ये नहीं हो सकता बड कि हम इन इलाकों का दौरा भी कर लें? वो बोला, मेरे ख्याल में हमें इसमें दिक्कत नहीं होगी। राहबर ने यह भी बताया था कि अगर हम अतराफ के इलाकों की सैर करना चाहें तो हमें फार्म हाउस से घोड़े भी फराहम हो सकते हैं, लेकिन एक मखसूस हद से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसके बाद खतरात शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा, गुड, इसका मतलब है तुमने राहबर से बहुत सी बातें मालूम की हैं। बोला, हाँ चीफ, इसीलिए इतना वक्त उसके साथ गुजारा मैंने। थोड़ी देर के बाद हमने नए लिबास पहने जो काफ़ी अच्छे और आरामदेह थे और बाहर निकल आए। मैंने फैसला कर लिया था कि पहले अतराफ की आबादी पर निगाह डालूंगा। हम पता मालूम करते हुए फार्म हाउस तक पहुंच गए जहां हमें घोड़े दस्तयाब हो सकते थे। हमने अपने सीनों पर वो निशान आवेज़ां कर लिए थे। हर इलाके का मुतल्लिका शख्स इन निशानात पर निगाह डालता और वही करता जो हमारी ख्वाहिश होती। घोड़े हासिल करने के बाद हम लाइन ऑफ क्रूजल की आबादी से बाहर निकल आए। हमने फैसला किया था कि अंदरूनी आबादी को हम बाद में ही देखेंगे। हमने अपने पास ज़रूरत की थोड़ी सी चीज़ें महफूज कर ली थीं। आगे चलकर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया, चुनाचे हम उसके दामन में सफ़र करते रहे। थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी नदियाँ या चश्मे मिल जाते थे। सफ़र करते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया। फिर एक तवीलो अरीज दरिया के किनारे पहुंचे जो एक पुरहैबत घाटी से निकलकर नामालूम कहाँ जा रहा था। हमने दरिया के मुतवाज़ी सफ़र करते हुए काफ़ी दूर तक जाने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि दरिया के मुतवाज़ी चलना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पाम के दरख्तों और कांटेदार झाड़ियों का एक वसी जंगल यहाँ बिखरा हुआ था। दोपहर हो गई, सख्त गर्मी थी, प्यास की शिद्दत में इजाफा हो गया था। हम पानी एहतियात से खर्च कर रहे थे। जूं जूं आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जमीन भट्टी की मानिंद तप रही थी और हवा बंद थी। झुटपटे का वक्त आया तो हम घोड़ों से उतर आए और पैदल चलने लगे। शाम रात में तब्दील हो गई और हम एक जगह कयाम के लिए टिक गए। न जाने क्या वक्त होगा कि किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई। हमने रोशनियां देख ली थी। गाड़ी सीधी हमारे करीब आई और हमने इशारा कर दिया।
गाड़ी बसनुमा थी। हमने उन लोगों से किसी करीबी बस्ती के बारे में मालूमात हासिल की तो वो हैरत से हमें घूरने लगे। फिर उन्होंने हमें पेशकश की कि अगर हम उनके साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राइवर का शुक्रिया अदा कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।